Hi, I am Gitanjali Banerjee, founder of Fertility Dose, where we support couples trying to get pregnant. And in this fertility journey, the most critical, important decision that can make or break you is choosing the right doctor or clinic. In this series, क्या है IVF clinic के अंदर? I am going to make it easy for you to find your ideal match, doctor and clinic. It's like your regular KYC, but with a twist. Know your doctor. और इसी मुहिम में हम आज आ गए हैं दिल्ली के इंदिरापुरम में at Gunjan IVF Center to meet Dr. Gunjan. Hi, doctor. Hi, Gitanjali. Hello. Nice to see you. Same here. It's such a beautiful place. आपका एक पहले दूसरा था ना दूसरी जगह पे? हाँ, we have otherwise 4 centers, but you're talking about the Indirapuram The center. first center. The It's been first so center. many years. I know, long time since we met. Actually, long time. आपका पहला सेंटर आपने कब ओपन किया था? That was in 2016 and we started, but practically it became functional in 2017 March. So 2017 and 2026. Wow, and you have moved on from one center to 4 centers and this beautiful space Thanks. is so aesthetic. Thank you. I really love that you appreciate it क्योंकि मुझे खुद ना बहुत ज्यादा सैड जगह में बैठना अच्छा नहीं लगता है and I want to sit in a place जहाँ सब comfortable हो and everybody at least positivity generate होनी चाहिए is what I want basically. I love how मंत्र चल रहे हैं. There's certain female energy in this space. It just feels like सब ठीक हो जाएगा. हाँ, actually पता है मैं बताती हूँ गीतांजलि, I came कब 2009 में I came from UK and that time I came with a very clear mindset because one thing I wanted to bring quality care to my women of the country and that's when I started gynae practice. और कई बार सुना भी होगा, मैं कई बार बताती हूँ, then I soon realized India में ना if somebody cannot become a mother then it is a big problem for, मतलब बंदी की respect ही इस चीज से आती है. And I am eldest of 3 daughters, so I come from a family which is very, female forward. My mom taught कि नहीं यार, you should do everything, you should be independent. So it came because we are 3 sisters, all 3 are professionals. So that's where the female energy you're talking about comes. So when I started the center, then I realized नहीं यार, fertility is a very big bane in our country and we really should work for it. So I started my journey as a high-risk pregnancy and a laparoscopic surgeon. But then I moved on to IVF. And even my first clinic, छोटू सी clinic थी 180 square feet की, but उसमें भी I kept little sofas and quaint little places so that when the person comes they should be approachable, मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए अरे यार मैं आके क्या बैठ गई, मुझे क्या करने वाला है, डॉक्टर कैसे बात करने वाला है, डर रहता है कि डॉक्टर से बात कैसे करूं. That is not something which I believe. I feel the doctor should be so open कि मैं आके सबसे पहले अपने दिल की तो बात कर लूं. आप डॉक्टर लग ही नहीं रहे हो, आप तो फ्रेंड लग रहे हो. You like this दोस्त I can speak and मैं आके वेंट कर सकती हूँ कि डॉक्टर बहुत परेशानी हो रही है. I know this is what people do with us. पता है हमारे साथ अल्ट्रासाउंड रूम्स में, कंसल्टेशन रूम में, अगर आप ये सेंटर में देखोगे ना, we made so many consultation areas because so that the person gets maximum privacy. They can come, they can talk to us, open with us because this is a very ऐसी चीज है जिसमें आपको ना 1-to-1 एक रिलेशनशिप है. देखो fertility is a journey. ऐसा नहीं है ना आज आप आए क्रोसिन दी बुखार ठीक हो गया, ठीक है. इट इज अ जर्नी. आप आते हो, इवैल्यूएट होते हो, इवैल्यूएट होने के बाद प्रॉब्लम निकल के आती है एंड देन अगर IVF रिक्वायर्ड है, आप नेचुरल वे जा रहे हो, IVF से जा रहे हो, जो भी जा रहे हो, विच एवर फर्टिलिटी जर्नी होती है, दैट्स अ जर्नी एंड देन यू बिकम प्रेग्नेंट, देन वी टेक केयर, इन फैक्ट वी टेक केयर फॉर 9 months as well. Oh, okay. So we'll talk about that more. But आप मुझे पहले दिखाइए तो इतना खूबसूरत सा क्लिनिक आपका. अच्छा. Give me a tour. Right. एवरेज इफ मैं पूछूं कितने कपल्स को आपने अभी तक ट्रीट किया होगा? See, if I tell you exactly, अगर हमारा ये डेटाबेस जो कि 2017-18 से आया है, इसमें ही we have around 20,000 plus.
20,000 plus. And Okay. उससे पहले I started practicing तब in कौन थे? 2009 हाँ। private. तो कुछ नहीं तो 25-30 हजार patients तो easily मतलब much more than that we have Couples को देखा होगा। couples को we have treated and आप ओरिजिनली दिल्ली के ही हैं या where are you from? नहीं I am from Lucknow. क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं I'm also from Lucknow. क्या बात करी सच है कहाँ से? गोमती नगर, my parents' house. I have studied in Loreto. हाँ, And okay. हाँ, I was schooling from Loreto and PG भी KGMC. KGMC से तभी आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा था तो उसमें KGMC. My father was in RDSO. Oh, So I was there okay. in RDSO, yeah. Such interesting another common ground, हाँ, suddenly. आज मैं आपको दिखाती हूँ. This is our like private area. So I'll show you. This is some private. थोड़ा सा हमने ना private area develop कर हाँ, comfort के लिए. comfort के Couples लिए जाके सब बैठ जाए. So these are the things. So it is like little quotes. वेरी इंस्पिरेशनल. इनफैक्ट हमने अभी किसी कपल के हाथ में एक बैग भी देखा आपका हाँ. और बहुत अच्छा उसमें लाइन लिखा था फ्रॉम बेबी टू बेबी. रियली लव. Actually, we have developed a lot of cozy and private areas. जैसे ना ये counseling rooms we have made. तो इसमें जैसे counselor is there and the people can come and talk here, sit with her. So she is Nivedita, our senior counselor. तो ये जैसे ये छोटा सा area, I said ना ये जैसे ये हमने photos लगा रखे हैं तो फिर people will, and there are real patients who have given us photos. जबकि आपको पता है IVF and fertility में people don't come Exactly. But we have huge number of videos, testimonials. आई थिंक वो फिर पेशेंट्स रहते ही नहीं ना, आपके दोस्त बन जाते हैं. हाँ, वो ये तो फिर दोस्तों के साथ फोटो शेयर करने में क्या प्रॉब्लम They है? always feel they say नहीं मैम हमें होना है. And you know जो मैं कहती हूँ ना दिल से हमें यहाँ पे अपनी फोटो अगले बार चाहिए. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि आपने फर्स्ट रूम ही आपका काउंसलिंग रूम है, सो दैट जो भी कपल स्ट्रेस में या टेंशन में आते हैं दे कैन फर्स्ट यू नो काम डाउन टॉक. कई बार वी ट्राई कि पहले तो वो एक बार काउंसलर से मिल ले फिर डॉक्टर के पास जाए. क्योंकि कई बार क्या होता है जब बंदा आता है ना वो बहुत दिमाग में बहुत ज्यादा डर एंड मतलब उसमें रहता है ना लॉट ऑफ थिंग्स. तो डॉक्टर के साथ ना एंजाइटी ज्यादा होती है, काउंसलर के साथ उसे लगता है मेरे जैसा कोई है जिससे मैं बात कर सकता हूँ. So they really like. वो calm down हो जाएंगे and then they can actually ask better questions to the doctor also. Exactly. So this is our first consultation room, which is there. I love how you have these huge windows and क्योंकि पता है मेरा सबसे ज्यादा डर यही होता था कि जैसे ही वो वाले पे आए और you know you were doing a vaginal ultrasound or something and you are all feeling so pain uptight, but with the window if you look through you know it's like it gives you that openness feeling. In fact Gitanjali ये तो मतलब it was not planned that way, but सामने ना मंदिर भी है. हाँ वही. So हमारे सारे नीचे ऊपर हर रूम से ना मंदिर दिखता है. So it creates such a lot of positive vibes and there's lot of sunlight, direct sunlight coming. Exactly. So it is very open. I mean, it's just completely it changes the whole aura, fear. And people have said, मैम यहाँ के कई बार मुझे ये लगता है हम कैफे में बैठे वही फीलिंग होनी चाहिए डॉक्टर गुंजन. कैफे में जाके रिलैक्स्ड होते हो ना, आप टेंशन में नहीं बैठे होते हो और रिलैक्स हो गए तभी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा. भाई हमारे में तो फर्टिलिटी में तो इट इज more important. That is why I do lot of this. I believe in holistic way of treatment. So that is why we have our nutritionist. We have this people, yoga expert who all are part of our team. Okay. So they give those sessions also. People undergoing IVF, it is a part of their package. एक session हम उनका करवाते हैं. जो हमें लगता है ज़्यादा stress है उनसे हम request करके डॉक्टर गोविल का भी एक de-stress session करवाते हैं. So all that really helps. So these are of course our awards and my RCOG degrees and lot I of can see how आप लोग की जो गुंजन IVF में फिलोसफी है कि यू नो पेशेंट को या कपल को डॉक्टर गोविल कह रहे थे जैसे कि पेशेंट हम बोलते ही नहीं है, पेशेंट है ही नहीं वो. They are not our patients. I think I love that philosophy, that principles integrated into everything. हर छोटी छोटी चीज का आप लोगों ने ध्यान रखा है. हाँ, there are little things which we do. I'll tell you कि मतलब छोटी सी चीज है जैसे हार्ट बीट आती है तो we'll put a sticker. उनके लिए हार्ट स्टिकर. ठीक, gives a good feeling. एक feeling well-being, एक feeling of जो होती है ना you feel good about things. तो I always feel I love my job. मैं कहती हूँ देखो दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, but I love my job as well because God has chosen me to do something really nice and good. And I love
the job कि see them as a bunch of cells, then see them in your मतलब गोदी में पकड़ना, मतलब बहुत ही amazing journey. I can see your passion come through in every word that you're saying. And it is like we are so integrated into it कि हम केवल इस पे ही नहीं work करते. Like believe me Gitanjali, I'm a medical person, but we have developed such strong processes, indigenous systems. Everything is mapped. तो कि हर एक के कंसेंट्स है आपके कितने बजे पेशेंट आया, कितने बजे देखा गया, देन जैसे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं आईवीएफ, एवरीथिंग इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना, इसके कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है. कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है. सिस्टर को गूगल फॉर्म पे सारी चेकलिस्ट करनी है व्हिच गोज इनटू द सिस्टम, देन दे हैव देयर ओन एमआईएस. सो इट इज नॉट ओनली कि पेशेंट आया तो कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं है. एवरीथिंग इज प्रोसेस विद, यू वोंट बिलीव ट्रीटमेंट इज टेम्परेटाइज. तो हम कहते हैं ना कि आप किसी भी हमारे सेंटर पे ट्रीटमेंट करवाओगे, द ट्रीटमेंट विल बी सेम. एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू मैनेज सच हाई रिजल्ट्स, बिकॉज वही वाली जो जैसे मैकडोनल्ड कहता है ना मेरा बर्गर हर जगह सेम रहेगा, दैट इज व्हाई आई से कि रुचिर आईवीएफ पे द ट्रीटमेंट वुड बी एज पर योर नीड्स एंड इट विल बी सेम, द क्वालिटी विल नॉट. तो सिस्टम्स एंड प्रोटोकॉल सेट है आपके बिल्कुल. तो वो अक्रॉस आप कोई भी सेंटर में चारों में से जाइए, या फिर मैंने सुना एक और सेंटर भी आपका आने ही वाला है बहुत जल्दी. Soon we are coming up with another center, so that should be announced soon. Great. Very advanced machines जैसे GE की है. So we have all these advanced machines. These are 3D scanning machines. मतलब IVF में कई बार इतनी हायर नहीं चाहिए होती, but to maintain the quality and everything we maintain this 3D machines, जिससे हमें कोई भी abnormalities हो वो सब maintain हो जाती है. Then we have total privacy, मतलब proper high end curtains. वो पूरा हम maintain करके रखते हैं. Much needed. You have a huge team of doctors. Like I'm seeing past 3-4 hours I'm here at your center and everybody is discussing, consulting, like high energy work is going on. We all enjoy our work is what I can say. Frankly speaking, a lot of clinics I've seen कि सब दौड़ रहे होते हैं. यहाँ पे I'm seeing that everybody is very clear, process oriented and you know एक seamlessly काम चल रहा है. हाँ, मतलब हमारे ना बहुत पेशेंट्स भी आ जाते हैं ना, तो भी ज्यादातर ना रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. जस्ट वन आफ्टर अनदर. तो वो प्रोसेस चलता रहता है. So low AMH में क्या डोनर ही कराना पड़ता है? लो AMH doesn't mean कि no AMH. It doesn't mean कि eggs नहीं है. It was कम है. Definitely it is a concern. कई बार क्या होता है, patients don't realize this. They spend lot of years and waste it. So I'm not saying कि हर low AMH को IVF की जरूरत है, but definitely quick planning की जरूरत है. If IVF is the route required, they should try and go for it. इसमें what we do lot of times, we do rejuvenation of the ovaries and we try and उसको rejuvenate करके, embryo pooling करके and ये सब करके we do extract eggs. कई बार 2 बार या 3 बार निकालना पड़ता है. pull the embryos and transfer them. तो उसमें क्या होता है, जब हम rejuvenative techniques और ये सब करते हैं तो we have a huge advantage कि वो quality better मिल जाती है. and with low reserve patient, I always say poor eggs quality या low eggs से परेशान नहीं होना है. there is quite a good chance you may still conceive with your own gametes. So we are not that promoters कि नहीं यार donor eggs यही करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं. We try as far as possible self, but of course few cases में donors may be required still. That is a different thing. But disheartened नहीं होना है इससे. Disheartened नहीं होना है. और अगर पता है low eggs है तो फिर timely intervention. Time is baby. Time is baby. Absolutely. तो ये वाली चीज है. कितना can you give me a range कि कितने को हम लो माने और it's like a trigger a panic button कि अभी ये नंबर आ गया तो now go and see your doctor or go for egg freezing for that matter. देखो AMH varies with age, we all know. हाँ, but अगर आपका AMH is less than 1.5, it is always a warning signal. Less than 1 is really low, less than 0.5 is very very low. But still even with AMH of मतलब 0 to 0.5 वाले में and 0.5 to 1 वाले में with self eggs we have achieved a success rate averaging around 70%.
Okay. एवरेजिंग हाँ Okay. सो मतलब लो रिजर्व प्रीवियस फेलियर्स इन सब में तो वी हैव रियली जो कहते हैं ना जो कहते हैं कोड क्रैक कर रखा है हमने So ठीक है, फिर आप टेंशन क्या लेनी है? Low AMH है is on your mind. If you are stressed or troubled with low AMH, come talk to Dr. Gunjan. And even in previous failures we are like we have recurrent recurrent failures yeah we've done we use lot of things मतलब there are lot of things जो आप ना इंट्रोड्यूस कर सकते हो असेस कर बिकॉज उसमें ना इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या गलत गया, क्या गलत गया वो डीप डाइव डायग्नोसिस करना पड़ता है. एग्जैक्टली मैं बता रही कई बार बहुत सिंपल थिंग्स होती है. देयर वाज दिस पेशेंट यंग पेशेंट केम टू मी 3 फेलियर्स ऑलरेडी हो चुके 3 बार ट्रांसफर कर दिया गया एक बार भी हिस्ट्रोस्कोपी नहीं हिस्ट्रोस्कोपी की डेंस एशरमैन एडिशंस वी जस्ट डिड द डिसेक्शन and then and she will can do see next next cycle embryo transfer and she can see it. इतनी छोटी सी बात इतनी छोटी सी बात थी मैं बता रही हूँ कई बार हमें वो करना पड़ता है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी इनफैक्ट आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन एंडोमेट्रियल माइक्रोबायोम आल्सो इन्फेक्शंस वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी तो उस पे डिटेल में हमें वर्क करना होता है सो मैं वही कह रही हूँ कि प्रीवियस फेलियर्स में तो की इज रीचिंग टू द रूट कॉज सो एट गुंजन IVF ऑल आई कैन से इज कि हम ना डीप डाइव करके रूट कॉज एनालिसिस बहुत जबरदस्त करता है दैट इज व्हाई वी डू और इम्यूनोमॉड्यूलेशन हर चीज है मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट एवरी वही वाली बात है नो ड्रेस फिट्स ऑल सो यू हैव टू सी कि क्या इस पर्सन के लिए पर्सनलाइजेशन सेकंड फ्लोर है इट इज अ टोटली इन पेशेंट एरिया सो पीपल कम हियर फॉर प्रोसीजर्स तो यहाँ पे हमारी IVF लैब है IVF OT है इवन हमारी लैप्रोस्कोपी एंड मेन OT जो है वो सारे वी हैव अ वेरी हाई एंड लैप्रो हिस्ट्रो सो एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी इज अंडर वन यहाँ से हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है सो दिस इज आवर एरिया एंड यहाँ से वी विल गो इनटू द मतलब अंदर OT कॉम्प्लेक्स में सो दिस इज लेट्स चेंज इनटू द स्टार्स एंड देन सी बिल्कुल अंदर जाके क्या है इनके IVF लैब एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर एग्जैक्टली हाँ सो नाउ वी विल सी द लैब इन द OT एरिया सो now we'll enter from here so this is an access controlled area basically and ye area is exclusively only mainly for doctors and patients undergoing treatment basically so that's so I'll take you to my OT I like all pink is it ये thoughtful था या by accident नहीं it was very thought about कि हमारा जो है ना the pink and the blue both are there mix and match you see so I light shades no pastel shades and plus pink is always about empowering because the burden of infertility is mostly on women only ज़्यादातर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है so I'll show you the OT and फिर उसके बाद we'll take you secluded area जिसमें limited people are only allowed entry तो ऐसा नहीं है इवन जो टीम है वो limited रहती है because we have to keep the environment the air and everything under control so यहाँ पे we do the pickup तो ऑपरेशन थिएटर में पिकअप्स होते हैं quite a huge space so that it क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं हो ना मतलब वैसे तो बहुत अगर IVF सेंटर्स होते हैं पता है पीपल डोंट रियलाइज कि दिस इज हाउ द क्वालिटी मैटर्स बट देन पीपल डू इन वेरी स्मॉल एरियाज छोटे छोटे एरियाज होते हैं उसमें पिकअप भी हो रहा है वो भी बट वी हैव लाइक डन कि पेशेंट को आके क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे अपना कंफर्टेबल लगे एंड वैसे भी जब प्रोसीजर होता है कि एनेस्थेटिस्ट होता है वो 2-3 पीपल यहाँ पे एक ट्रॉली लगी होती है and all those things so there are lot of procedures which is going on equipment और आ जाता है so that come I'll take you to the lab now so I'll take you to my lab this is our IVF lab this is the heart of IVF center किसी भी hi Bhupen he is Mr. Bhupen. He is our head of embryology across all centers. So he is responsible for the quality maintenance, everything. मतलब embryology is him, is what I say. So he is actually making the babies. He is the person who is making the babies. तो वो जो है पूरा and he is very experienced, more than 25 years का experience है. These are the various equipment. So everything which you ask is here.
whether it is an ICSI machine, whether it is a benchtop incubator, of course the laminar, the zoom, the bigger incubator, the box incubator. So we have everything, the laser. So everything we have in our lab. There's nothing which you can say ki nahi hai. So it's a very high-end lab where everything is done and maintaining the air quality and extra ये सब जैसे you know Delhi का pollution. So we can't wait कि भाई दिल्ली में pollution होगा तो आपके results. So इसलिए हमें ना multiple filters and HEPA filters and specialized laminar flows और वो सब करना. AHU unit हाँ. So it's a पूरा AHU unit. So there are lot of things जो mandatory नहीं है but वो भी हमने यहाँ रखे हुए हैं. To improve the quality. हाँ. तो हम we are very very head on quality maintenance. तो हर चीज जो चाहिए for a successful IVF is there. तो ये हम एग जो कहते हैं ना oocyte है, ये आप देखो लाइव देख सकते हो. एंड दिस इज द नीडल गोइंग इन विद द स्पर्म. इसमें स्पर्म कैच कर रखा है एंड दिस विल जस्ट डू अ जेंटल प्रिक एंड पुश. तो ये जो है स्पर्म जाके हमने इंजेक्ट कर दिया इनसाइड द एग. सो दिस इज द बिगनिंग व्हिच हैज हैपेंड एंड दिस इज द oocyte. और ये ऐसे करके देन इट हैज बीन फर्टिलाइज्ड. तो अब इसके बाद इट विल बी लेफ्ट टू ग्रो. वो मशीन कैसे स्लाइड मूव कर रही है? So this is the procedure and we believe in total transparency. जैसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले स्क्रीन पे पेशेंट को बुला के उसके एम्ब्रियोज दिखा देते हैं कि देखो ये एम्ब्रियो है, ये ग्रेड है. फर्टिलाइज जैसे ये कर लेते हैं. उसके बाद we give a summary to the patient. And you were talking about blastocyst. Basically since almost inception 2017 has started और उसमें मैं since April onwards I've been doing blast transfers only. अच्छा. हाँ, we always because देखो blast करने में डर क्या होता है लोगों को कि उनकी लैब इतनी अच्छी नहीं है, पता लगा it did not grow तो डाल दो. नहीं, we have to देखो वैसे भी blastocyst is the same जिस स्टेज में naturally बॉडी में आके वूम में आके जब एम्ब्रियो चिपकता है नेचुरल प्रेगनेंट तो इट्स अ ब्लास्ट. So to make it clear for people who are watching us, blastocyst is day 5 तक आपका एम्ब्रियो ग्रो कर गया है. Exactly. And now it is the appropriate time to insert it back into the womb so that वो easily और grow कर सके. Absolutely. इसीलिए तो difference क्या होगा day 3 और blastocyst? पहले let's देखो मैं बताती हूँ, मैं बेसिक बताती हूँ. एक बार ये हाँ ये अब जैसे ये है आप देखो ब्लास्ट है जो कि वॉल को भी ब्रेक कर चुका है. कैन यू सी एंड इट इज कमिंग आउट. तो ये बिल्कुल रेडी है. तो ये बेसिकली ये एक तरह से इसने अपने ना पंजे फैला लिए हैं और उसको जाके बस लैच करना है मम्मी से. So मतलब ज्यादा गारंटी हो गई इम्प्लांटेशन की. इट इज ऑल इंक्रीजिंग द सक्सेस. देखो बेसिकली क्या है डे 2 डे 3 क्या है. देखो सबसे पहले जिस दिन हम फर्टिलाइज करते हैं तो फर्टिलाइज करते समय अभी आपने जैसे देखा एग और स्पर्म मिलते हैं. नेक्स्ट डे से मल्टीप्लिकेशन 4 सेल देन 8 to 10 सेल स्टेज ऐसे करके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के. सो अगर हम किसी एम्ब्रियो को 5 दिन तक ग्रो कर लेते हैं तो एक तो पहली चीज हमने खुद देख लिया कि कौन सा बेस्ट ग्रो किया, किसने हेल्दी ग्रो किया. आप उसको ही डालोगे उसके चांसेस बेटर है. अगर उसका जेनेटिक टेस्टिंग करते फर्दर आप उसको कर लेते PGTA करके. बट अदरवाइज अगर नहीं भी तो अगर आप ग्रेडिंग करके एक अच्छा A ग्रेड ब्लास्ट बना रहे हो तो उसके चांसेस बेटर है. ठीक है ऑफ गोइंग. और जैसे ये अभी है ये तो बिल्कुल हैचिंग ब्लास्ट है. तो दिस इज रेडी टू लैच ऑन टू द मॉम की हियर आई कम. थैंक यू सो मच. मतलब इतने अच्छे से इतने डिटेल में आपने हमें अपने लैब में भी इनवाइट किया और सारी चीज़ें इतनी क्लियरली दिखाई कि हमारे जो फर्टिलिटी दोस्त के ऑडियंसेस हैं जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना डिसीजन बना रहे हैं, वो अपना चॉइस अपना डिसीजन बहुत क्लियरली बना सके और अच्छे से उसको समझ के एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाए. थैंक यू गीतांजलि फॉर कमिंग ऑल्सो बिकॉज you've come and you are the person who has a knowledge of this topic, you know, so you can appreciate also ki how things are different in different places and how Gunjan IVF world is different. So वो जब आपको because you are also the right person to make that judgment. जी बिल्कुल. और मैं चाहती हूँ कि हमारे थ्रू इस मुहिम इस मिशन के थ्रू लोगों को सही गलत एथिकल अनएथिकल क्या सही प्रोसेस है उसकी समझ हो सो दैट दे कैन आस्क द राइट क्वेश्चंस टू द डॉक्टर्स एंड टेक होम बेबी लेके जा सके. बिल्कुल बिल्कुल. सो डॉक्टर गोविल टेल मी वन थिंग, आपके यहाँ जो भी कपल्स आते हैं गुंजन IVF में
उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है मोस्टली, लाइक व्हाट यू सी 10 आउट ऑफ अमंग 10 कपल्स? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि जो उनकी स्टेट ऑफ माइंड होती है ना, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है और वो एक मेक और ब्रेक फैक्टर भी होता है। अच्छा, So, कैसे? अगर उनकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी नहीं है, दे आर नॉट इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, दे आर वेरी डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि उनके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आते। सो स्ट्रेस जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द सक्सेस ऑफ द आईवीएफ ट्रीटमेंट। सो दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि ये बहुत ही बड़ा मेक और ब्रेक फैक्टर हो जाता है इन आईवीएफ रिजल्ट्स। बट सच्चाई तो ये भी है ना कि जो भी इनफर्टाइल कपल है, जिनको बेबी नहीं हो रहा है और सोशल प्रेशर इतना ही रहता है, तो वो आएंगे ही आपके पास एक डिप्रेस्ड, एंग्शियस, स्ट्रेस्ड सिनेरियो में। तो फिर व्हाट डू यू डू तो एक्स्ट्रा? मैम यहीं पर ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनको ढंग से सुनना। मतलब लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दैट। सो यू हैव टू लिसन देम प्रॉपर्ली, इन डेप्थ, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और हम ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। फिर हम एक्चुअली उनको केवल बेबी नहीं दे रहे हैं, हम उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं उन्हें। तो ये ना एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम अप्रोच है हमारी, क्योंकि until and unless you solve all their problems, वो स्टक रहेंगे, और जब वो स्टक रहेंगे तो वो कभी भी एक पॉजिटिव फ्रेम में नहीं आ पाएंगे उस ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट कराना कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, फिर इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली आईवीएफ की वजह से है, किसी और वजह से। अरे बाप रे, बिकॉज इतने सारे, आपने खुद ही बोला कि इतने सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं। अब एक फीमेल आ रही है जिसको बच्चा नहीं हो पा रहा है, और वो ट्राई कर रहे हैं पागलों की तरह, और उसकी वजह से वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी सुन रहे हैं, वो अपने घर में भी सुन रहे हैं, उनके इन-लॉज भी उनको बोल रहे हैं, इवन उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं। तो आप समझो कितना सोसाइटल प्रेशर है उसके ऊपर। इतना प्रेशर में आकर के आपको क्या लगता है एब्सोल्युटली कि वो ट्रीटमेंट कराने की स्टेट में ही नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उनके उस प्रेशर को रिलीव करना होता है, उनको एक कंफर्ट जोन में लाना होता है, और कंफर्ट जोन में लाने के लिए आपको उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ती है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला, योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट लिसनिंग, आई थिंक लिसनिंग इज सो अंडररेटेड। लोग हमें, and I go to so many clinics, I meet so many doctors, mostly I've seen that पेशेंट आता है या कपल आता है तो डॉक्टर या उनकी टीम उन्हें बताती है, उनको बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, उनकी सास उनको बता रही है, उनके दोस्त उनको बता रहे हैं, हर कोई उन्हें बता ही रहा, सुनने वाला नहीं है। तो आई एम रियली लाइकिंग दिस होल कंसेप्ट दैट यू गाइज आर फोकस्ड एट गुंजन ऑन लिसनिंग टू देम। हम कहते हैं ना कि उनको अगर रो लेने तो उनसे दिल हल्का हो जाता है, तो हम वही करते हैं, हम उनको सुनते हैं, उनके पूरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और जब वो पूरा सुना लेते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स को, उसके बाद हम उस बात पर आते हैं कि अब चलो मिलके बैठ के इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि रोने से उनका दिल हल्का हो जाता है। तो कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और हर बार उनको अगर हम केवल ज्ञान देते रहेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि एक एवर्जन क्रिएट हो जाता है उनके माइंड में कि यार यहाँ पर आए थे कुछ नया दिल सोच के, और यहाँ भी हमें वही मिल रहा है जो हमें और जगह मिल रहा था, तो फिर हमारे आने का फायदा क्या है? वो एक टास्क जैसा बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अप्रोच क्या रहती है। तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि मैं मैं पेशेंट भी नहीं कहता हूँ एक्चुअली में इनको, क्योंकि ये पेशेंट तो है नहीं, क्योंकि इनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इनको पेशेंट नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये एक परेशान कपल है जो मेरे पास आया है अपनी परेशानी लेकर। तो वो एक परेशान कपल से मैं ये पूछता हूँ कि उसको, जब मैं बात करता हूँ तो मैं उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स को, कि उसकी नीड क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसके फियर्स क्या है, और उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस क्या है। सो अगर मैं इन 4 चीजों में, इन 4 कंपोनेंट्स में उसकी प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेता हूँ, तो मेरे लिए ना उनके सॉल्यूशंस 1 बाय 1 उसको देना बहुत आसान हो जाता है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, नीड क्या है और डिजायर क्या है, सबसे पहले इसमें ही फर्क समझना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मेनी पीपल थिंक कि नीड और डिजायर के अंदर ना बहुत
छोटा सा डिफरेंस है। हाँ, देखिए, नीड जो होती है वो हमें जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी होती है ना, वो नीड होती है। तो बच्चे के बिना वो मर तो नहीं जाएगा, दे कैन नॉट, बट बच्चा एक्चुअली डिजायर है। और जब भी हम डिजायर की बात करते हैं तो डिजायर जो है ना, वो स्लो कन्वर्जन है, वो रैपिड कन्वर्जन नहीं है। लोग मार कहां खा रहे हैं? लोग मार वहां खा रहे हैं जब वो डिजायर को नीड समझ के काम कर रहे हैं। और जब हम नीड समझ के काम करते हैं ना, तो हम पुश करने लगते हैं, और वो पुशिंग ही जो है ना, वो डिट्रीमेंटल होती है। वाओ। अगर मैं आपको पुश करना शुरू कर दूं किसी चीज के लिए, नहीं अभी करो, अभी करो, अभी करो, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में यह आएगा कि ये मुझे जबरदस्ती फोर्स कर रहा है। हाँ, एक अननेचुरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके दिमाग में। वो कुछ सोच के आया है, और आप उसको फोर्स करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? वो आपसे नाराज हो जाएगा। तो मुझे उसको नाराज नहीं करना है, मुझे उसे समझाना है, एक बड़े भाई की तरह, एक पेरेंट की तरह, एक गाइड की तरह उसको गाइड करना है कि नहीं। तो वहां फर्क है। नहीं, आपने तो बिल्कुल फ्रेमवर्क दे दिया, एक 4 पॉइंट फ्रेमवर्क दे दिया आपने। तो मैं यही कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जब तक इन चीजों को समझते नहीं है ना, तब तक आप उनकी तह तक नहीं पहुंच पाते, और जब तक आप उनकी तह तक नहीं पहुंचेंगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। बेबी इज नॉट अ सोल्यूशन। उनके पूरे सिनेरियो को चेंज करना पड़ेगा, उनकी पूरी सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, तब जाके वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। और एक्सेप्ट करके फिर वो, आप समझिए कि उसके बाद उनका जो उत्साह भी दुगना हो जाएगा। आपने एक स्टिग्मा हटा दिया उसके साथ, आपने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया डॉक्टर गोविल। तो जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं एक इनफर्टिलिटी से गुजरने वाले कपल को, जो हम सोचते हैं कि उनको मेहनत करनी चाहिए, उनको बार बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनको बहुत अपना लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर देना चाहिए रातों रात, तभी बेबी होगा, पर आपने तो पूरा नैरेटिव ही आज बदल दिया। मैं कहता हूं कि हमें ना किसी भी चीज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक बहुत सुंदर सा शब्द है हिंदी में जिसको बोलते हैं सहज होना। वही सबसे मुश्किल है, और वो सबसे मुश्किल है। बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि आप सहज हो जाओ, आप कैजुअल हो जाओ, आप इतना अपने ऊपर प्रेशर मत लो। बट ये सीखना बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से कैसे आता है? प्रैक्टिस से मेडिटेशन के थ्रू आता है, ये ध्यान लगाने से आता है, ये अच्छी बुक्स पढ़ने से आता है, ये अच्छी बातें सुनने से आता है। तो जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप लाइफ में सहज होना नहीं सीखेंगे। ये 1 या 2 दिन की चीज नहीं है कि आप मेरे पास आए और मैंने बोल दिया कि आप कैजुअल हो जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं कहता हूं आप स्ट्रेस मत लो। कैसे स्ट्रेस नहीं लोगे आप? आपको हर दिन, हर समय, हर पल कोई ना कोई स्ट्रेस फेस कर रहे होते हो आप। तो कैसे कह दूं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। उस स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप वो नहीं सीखोगे, तब तक आप उस स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और एक्चुअली वही डिफरेंस है। हमारे पास समय नहीं है। एक पेशेंट के बाद मुझे दूसरा पेशेंट देखना है, दूसरे के बाद तीसरा देखना है, तो मैं उसे टाइम कैसे दूंगा? तो टाइम देना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए आपको एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़े, और जो कि हमने यहाँ पर किया है। अच्छा, तो हमारे काउंसलर्स अलग से टाइम देते हैं उनको। They sit with them, they talk to them, और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं भी उनसे बैठ के बात करता हूँ। तो मतलब एक दोस्त ही, जैसे आपने बोला, एक दोस्त बनाना पड़ेगा। जब तक आप उन्हें दोस्त नहीं बनाओगे ना, आप उसकी तह तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एक दोस्त ही दोस्त से अपनी सारी अंदर की परेशानियां शेयर करता है। सब की यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे स्ट्रेसेस को भी दूर कर देता है। आप अपने दोस्त के पास जाते हो ना, वो कहता है कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, वो हिम्मत संभाल लेंगे। तो वो हिम्मत कौन देगा? क्योंकि घर पे तो ऑलरेडी इतनी सारी बातें हो रही हैं। शादी में जाते हैं तो वहां पूछते हैं कब सुना रहे हो खुशखबरी। एक ये बहुत ही छोटा सा वर्ड होता है, लेकिन ये इतना पिंच करता है ना उनको उस समय। Absolutely. तो वो वाली स्थिति को समझना पड़ेगा। उनको एज अ दोस्त अप्रोच करना पड़ेगा। उनको दोस्त बनाना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के दोस्त की तरह बात करनी पड़ेगी। गौरव, ऐसा लगता है
है कि आईवीएफ बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत बार एक आईवीएफ से होता भी नहीं है, फिर एग फ्रीजिंग है, लैप्रोस्कोपी है, कितनी सारी चीजें हैं. सो हाउ कैन अ कपल प्लानिंग फॉर आईवीएफ काइंड ऑफ वर्क अराउंड दिस फाइनेंसेस? देखिए, आप एक बात समझिए, आईवीएफ का खर्चा मिनिमम 1.5 से 2 लाख, सो 1.5 से 2 लाख तक का आता है, डिपेंडिंग ऑन कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग हुई है, आईवीएफ है, सेल्फ एक्स के साथ है या डोनर एक्स के साथ. बट अगर कोई कपल आईवीएफ प्लान कर रहा है तो इतना बजट लेके चलें, और यही एक रीजनेबल कॉस्ट है. इफ यू गो ऑल ओवर इंडिया, दिस इज द कॉस्ट एनीवेयर इन इंडिया. इतना खर्चा आता ही है. सो इतने प्लान करना चाहिए, इतना मेंटली वो प्रिपेयर, फाइनेंशियली प्रिपेयर करके ही वो आईवीएफ की तरफ जाए. और जो कपल्स कई बार हमसे कहते हैं कि हम एक साथ सारा नहीं दे सकते, हाँ. तो हम उनके लिए 0% इंटरेस्ट पे लोन्स अरेंज कराते हैं. सो वी हैव स्पेशलाइज्ड टाई-अप्स विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड बैंक्स. 0% इंटरेस्ट? या 0% इंटरेस्ट. उसमें इंटरेस्ट हम बेयर करते हैं, सो दैट कपल पे फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा ना आए. तो वो कपल उसके 12 months to 18 months में दे कैन रीपे, तो उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है. हाँ. और फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आता. हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बिकॉज ये वाला लोन आप इंश्योरेंस में ज्यादा कवर्ड है नहीं आईवीएफ ट्रीटमेंट, और लोन यूजुअली पर्सनल लोन आप ले नहीं सकते इस ट्रीटमेंट के लिए. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू गाइस आर डूइंग इट. अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज भी जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आईवीएफ कवर होता है, बट दैट टू अ लिमिट. उसमें एक स्लैब रहता है, 50,000 कहीं 1 लाख हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, लेकिन सारी पॉलिसीज में नहीं है. जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं हमारे देश के, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में होता है, बट दैट टू अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली. कहीं 50,000, कहीं 1 लाख. तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, देन वी से कि कोई बात नहीं, लोन से भी आप कर सकते हैं. तो हमारा फोकस होता है कि पैसे की वजह से कोई खाली हाथ ना जाए, बस. हाउ स्वीट. आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली नोबल व्हाट यू गाइस आर डूइंग. आपने अभी बोला कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आईवीएफ होता है, पर अभी मैं आ रही थी गुंजन आईवीएफ, तो मैंने रास्ते में एक ऐड देखा कि 70,000 में आईवीएफ करा लीजिए. एक ऑटो के पीछे एक ऐड चल रहा था कि 60,000 में आईवीएफ कर दे रहे हैं. तो क्या आप लोग महंगे हो इतना, डबल? देखिए, आईवीएफ की जो सही कॉस्ट है वो तो 1.5 से 2 लाख रुपए ही है एक साइकिल की. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांसपेरेंसी है. क्या 70,000 लेके वाकई 70,000 में ही ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जो 70,000 एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, वो भी वही पैसे ले रहे हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए. गुंजन आईवीएफ में ट्रांसपेरेंसी है. हमें जो पता है इतना खर्चा आना है, हम क्लियरली कपल को पहले से बता देते हैं कि इतना खर्चा आएगा, सो दैट वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं. एंड आवर कपल्स रियली अप्रिशिएट द ट्रांसपेरेंसी दैट गुंजन आईवीएफ गिव्स. That's very important because ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि आप 60,000 70,000 में चले जाते हो, फिर बाद में पता चलता है कि मेडिसिन का अलग खर्चा है, इंजेक्शंस का अलग खर्चा है, शायद इक्सी कराना है तो अलग खर्चा है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड एन एथिकल प्रैक्टिस दैट यू गाइज आर डूइंग, दैट आप उनको पहले से अवेयर करा देते हो कि क्या ब्रेकअप है पूरे इस फाइनेंशियल सिचुएशन का. देखिए, आईवीएफ ट्रीटमेंट में हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, इसकी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है. इसके अलावा एक्सी, ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ये सब भी अलग-अलग पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है. सो सम सेंटर्स जो कम कॉस्ट कोट करते हैं, वो ये सब कॉस्ट को ऐड नहीं करते हैं. बट व्हेन यू ऐड अप ऑल दिस कॉस्ट व्हिच एक्चुअली इज गोइंग टू इनकर, तो कॉस्ट वहीं आती है. सो इट इज बेटर टू बी ट्रांसपेरेंट सो दैट कपल एक पैसे अपने अलग करके मेंटल पीस के साथ अपना ट्रीटमेंट करा सके. बिकॉज लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट केवल आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए नहीं कराते, वो बेबी के लिए कराते हैं. सो उनका एक मेंटल पीस पे होना और फाइनेंसेस का सॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है. सो इट मेक्स द जॉब ऑफ एवरीबॉडी वेरी इजी if the couple is at peace. Absolutely. At the end of the day, you just want to take the baby home. Actually, you know, आपको सिर्फ IVF नहीं कराना है, आपको बेबी लेके जाना, और चाहे जो भी करना पड़े उसके लिए. तो it's better that they're prepared and they don't get frustrated. Exactly. So what is more important is to be truthful and honest and be reasonable in whatever the charges are. And that is why we are very, very proud that our foundation is built on affordability, reliability and transparency. When you choose a fertility clinic, let's be honest, you're not choosing the building, you're choosing the doctor. And at Gunjan Clinic, the
biggest strength is Dr. Gunjan herself. She's honestly a power box, sharp, energetic, deeply involved, and incredibly result oriented. She has handled so many successful cases, and you can feel that confidence when she speaks. You're not just another file on her desk. What I personally found rare is that her husband, a senior neurologist, is also actively involved in counseling couples himself. As a couple, they handle couples, and that dynamic makes a huge difference. The emotional side is not ignored. The husband is heard, the wife is heard. It feels balanced. Cost-wise, they're transparent. They won't sell you dreams at cheap rates, but they will explain every cost clearly. No hidden surprises later. No last-minute add-ons. Infertility, clarity and confidence matters. And here, you genuinely get both.